let's do the revision of the chapter coordinate geometry. ये आप पहले पढ़ चुके हो. This is the Cartesian plane. Here you are seeing x-axis, y-axis. This is the positive direction of x-axis. This is the negative direction of x-axis. This is the positive direction of y-axis, and this is the negative direction of y-axis. In a class 8 you have just read about the positive directions. In class 9 you are going to learn about the positive directions as well as the negative directions. The x-axis and the y-axis, where they are intersecting each other, this is known as origin, and it is denoted by O, and the coordinates of origin are 0, 0. It is a one marker question. Sometimes it is asked in the paper, write the coordinates of the origin, then you can say the coordinates of the origin are 0, 0. Now this Cartesian plane is divided into 4 quadrants. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. Now कई बार ये क्वेश्चन अगर मैं देती हूँ, write the quadrant in which the following points lie. I am writing like this. तो बच्चा क्या करता है, वो कहता है कि मैम मुझे ग्राफ पेपर दो. पहले वो प्लॉट करता है और फिर उसके बाद बताता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. No need of plotting the points. This is the main point which I want to tell. You can just tell by seeing the nature of the points कि whether it is lying in the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So don't waste your time. See in the first quadrant, x is positive, y वाले points भी positive है. This is the first quadrant. x की coordinates positive दिखाई दे रहे हैं, y की coordinates भी positive. तो जब दोनों पॉइंट्स आपको क्या नजर आएंगे, पॉजिटिव, ये थोड़ा सा याद करो. देन आप बोलोगे ओ द पॉइंट लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विदाउट प्लॉटिंग इट. सेकंड क्वाड्रेंट में x के पॉइंट्स कौन से हैं, नेगेटिव, और y के पॉइंट्स कौन से हैं, पॉजिटिव. सो अगर आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यू विल से दैट इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. लुक एट द थर्ड क्वाड्रेंट. Here x is negative as well y is also negative. So negative, negative. When you see that both the coordinates are negative, you will immediately say that it lies in the third quadrant. Suppose I am writing the point 2 minus 3. See the fourth quadrant. x की values क्या है, पॉजिटिव, और y की values क्या है, नेगेटिव. So प्लस माइनस, ये याद करो, प्लस प्लस पहली शुरुआत ही पॉजिटिविटी से हमने शुरुआत करनी है. तो बहुत पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट. थोड़ा सा दिमाग में विजुलाइज कर लिया करो, नहीं भी आता कि इस तरफ एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से शुरू है, नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, रिवर्स कर लिया. और इस तरह से वी कैन विदाउट ड्राइंग द क्वाड्रेंट्स. एक बात और आपने स्पेशल ध्यान रखनी है. अगर मेरा कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, दिस एक्स कोऑर्डिनेट इट इज नोन एज एब्सीसा and the y coordinate it is always known as the ordinate. अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, स्पेशल ऑन, जो आपने याद रखना है, ऑन x एक्सिस y coordinate is 0. on x axis y coordinate is 0 and on y axis x coordinate is 0. अब कई बार एग्जामिनर ने कई बार हम लोग जो हैं बच्चे को जस्ट कंफ्यूज करने के लिए कहते हो, बताओ भैया ये कौन से क्वाड्रेंट में है. तो ये आपको लगेगा ये तो दोनों ही पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नो, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है लेकिन y कोऑर्डिनेट इज 0. ऑन y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस. तो इस तरह से जब भी आपको बच्चे x y कोऑर्डिनेट 0 दिखाई दे या x कोऑर्डिनेट 0 दिखाई दे, तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे. दे विल लाई ऑन सम एक्सिस. इफ y कोऑर्डिनेट इज 0 दैट इट लाइज ऑन x एक्सिस, and if x coordinate is 0 then the point lies on y axis. Listen it again. If the y coordinate is 0 the point lies on y, तो गया 0 हो गया, वैल्यू किसकी होगी, x. ऐसे याद रख लो. तो the point lies on x axis, and if x
कोऑर्डिनेट इज 0, x तो खत्म ही है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू किसकी है, y की, सो दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। इस तरह से आपने याद करना है। अब मैंने कह दिया कि सपोज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच एब्सिसा इज 3 एंड इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया 0, एब्सिसा हो गया इसका सपोज 3, तो फटाफट से मैंने कह दिया भैया पॉइंट्स जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 और 0 होंगे। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है तो इट विल इधर लाइज ऑन x एक्सिस और इट लाइज ऑन y एक्सिस। अब मैंने सपोज करो P के पॉइंट्स दे दिए 2, 3, Q के पॉइंट्स दे दिए मैंने -3, 5। I can also ask the question, write coordinate क्या दूँ, एब्सिसा क्या दूँ, ऑर्डिनेट ऑफ P माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q, मैंने क्वेश्चन ही बनाना है। ऑर्डिनेट ऑफ P इज 3 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q इज 5, तो व्हाट इज माय आंसर 3 minus 5, it is how much -2। Similarly they can ask find the abscissa of P minus abscissa of Q। ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज abscissa of P, P का abscissa क्या है बेटे 2, वैल्यू भर दी आपने 2, फिर साइन किसका नजर आपको माइनस का, abscissa of Q, abscissa of Q is -3, बी केयरफुल, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं साइन चेंज करने की, तो अल्टीमेटली माय आंसर इज 5। ये क्लियर हुआ बच्चे, कि एक तो आपने बताना कि पॉइंट बिना ड्रॉ किए कौन से क्वाड्रेंट में है और एक बताना कौन सी एक्सिस पे वो लाई करते हैं। एक बार मैं बता दूं, एक बार कई बार बच्चों को ये पॉइंट्स ड्रॉ करने मुश्किल लगते हैं, 2, 0 या B 0, 3। एक मैं आपको फिर रिफ्रेश कर देती हूँ, C1, 1 ये लेती हूँ, फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x एंड द सेकेंड वैल्यू इज ऑफ y। माई जर्नी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, शून्य पे हम 0 पे खड़े हैं, देन आई स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स x एक्सिस, x पे जाने के बाद मैं रुकूंगी नहीं, मेरी जर्नी खत्म किस पे होगी y पे, तो 0 से x की ओर मैं गई कितनी, हाउ मेनी यूनिट्स 1 यूनिट्स, बट आई एम नॉट सपोज टू स्टैंड हियर, यहाँ से मैंने 1 यूनिट y की ओर बढ़ना है, y के सामने 1 यूनिट, यहाँ पहुँच गई, सो एक्चुअली दिस पॉइंट इज 1 and 1। अब इसी तरह से सपोज मैंने कहा आपको -2 and 3, P -2, व्हाट इज दिस -2 किसकी वैल्यू है बेटा x की, और 3 किसकी वैल्यू है y की। अगेन आई एम सपोज टू स्टैंड एट द ओरिजिन, कहाँ खड़ी हुई मैं ओरिजिन पे, x इज हाउ मच -2 पे, 0 से मैं -2 पे आ गई, लेकिन मैंने यहाँ इस स्टेशन पे नहीं रुकना, मैंने रुकना कौन से स्टेशन पे जाके y पे, ये तो मेरा एक बीच का रेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे मैंने थोड़ा रेस्ट लेके अब अपनी जर्नी दोबारा शुरू करनी है। तो y इज हाउ मच 3, अब मैंने और यहाँ पहुँच चुकी हूँ इस स्टेशन पे, यहाँ से मैं चली यहाँ पहुँच चुकी हूँ, मैं दोबारा घर नहीं जाऊँगी, अब यहाँ से अगले घर की तरफ जाऊँगी, ये है अगर 3 तो बिल्कुल 3 के सामने -2, इधर से -2 के सामने और इधर से -3, ये जो मेरा पॉइंट बन गया, दिस पॉइंट इज -2 and 3। we're just doing the revision, you know well how to draw the points। तकरीबन जो बच्चा गलती करता है मोस्टली दे डू मिस्टेक इन सच काइंड ऑफ पॉइंट्स। आई वांट टू प्लॉट द पॉइंट A to 0। आई स्टार्ट माय जर्नी अगेन फ्रॉम ओरिजिन, x कितना है 2, x इज हाउ मच 2, मैं यहाँ खड़ी होगी, अभी कहता है y की ओर 0 किलोमीटर चलो, 0 मीन्स नथिंग टू मूव, सो ये 2 किलोमीटर, यही जर्नी यहीं पे मेरी फाइनल जर्नी होगी, एंड दिस पॉइंट शोज 2 and 0। सिमिलरली इफ आई वांट टू ड्रॉ द पॉइंट दैट इट भी माइनस से कर लेते हैं, 0 -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 0, x इज 0 हियर, या ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे x भी 0 है और y भी 0 है, माई x इज 0, मतलब मैंने चलना ही नहीं x की ओर।
अब मैंने यहाँ से y की और -3 चलना है, यहाँ से ये -y3, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0 और -3। अगर बेटे आपको डाउट भी है कि मैम हमें 0 वाले पॉइंट्स ड्रॉ करने में डाउट होता है, तो कैसे क्लैरिफाई कर सकते हो? देखो ये पॉइंट x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? 0, y, बिल्कुल सही। इसका मतलब y दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। एंड लुक हियर, दिस इज y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? x। सो यू कैन वेरीफाई योर आंसर कि हमने जो पॉइंट्स हैं वो ठीक प्लॉट भी किए हैं या नहीं किए हैं। अगर मैं आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैं कह देती हूँ, राइट, कोई भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट above x-axis, lying on y-axis at a distance of 2 units। एक बार तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, आराम से पढ़ो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अबव x-axis। अबव x-axis का मतलब x-axis के नीचे x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? नेगेटिव, और x-axis के अबव, इसके ऊपर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हैं? पॉजिटिव हैं। y के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, y के कोऑर्डिनेट्स बच्चा x के नहीं, सॉरी, x-axis के ऊपर y के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं एंड बिलो x-axis y के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं। तो इस बात को कहने का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अबव x-axis। अबव x-axis का मतलब पहली बात होगी कि जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लाइंग ऑन y-axis, लाइंग ऑन y-axis, y-axis के पास x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, कोई टेंशन नहीं। दूसरा पॉइंट क्योंकि अबव था वो क्या हो गया? पॉजिटिव, कितने? एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, तो मेरा पॉइंट क्या बन गया? 0 और 2 बन गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस पे ये नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, टूवर्ड्स राइट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे? हमारे पॉइंट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ये देख लेना ये किस पे डिसाइड, अगर आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हो तो फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस। इफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, इफ इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। जो फिलर्स हैं वो आपने भरने हैं, इच विल बी गिवन इधर 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। तो वो अबव है पॉजिटिव, बिलो है नेगेटिव, लेफ्ट है नेगेटिव, राइट है पॉजिटिव। तो इस तरह से पूरी कंडीशंस पढ़ने के बाद आप एक्यूरेसी से किसी भी पॉइंट को ड्रॉ कर सकते, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चा बता सकते हो। ये तो 1 मार्कर 2 मार्कर्स क्वेश्चंस बेटा बन जाते हैं। अब कई बार जो है समटाइम्स यू गेट द क्वेश्चन लाइक, मैंने आपको पॉइंट्स दिए, यू आर सपोज टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड देन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड चेक वेदर इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपके पास जो पॉइंट्स थे आपने उससे ये लाइन बना दी। अब आपने चेक करना है ये ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं। आपने लाइन को बढ़ाना है बेटे, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप देखो आपने लाइन को बढ़ाया, हो सकता है ये ओरिजिन से पास करती, हो सकता है ये ओरिजिन से पास ना करती, ये कोई जरूरी नहीं है। स्पेशल थिंग इज यू हैव टू प्रोड्यूस द लाइन। प्रोड्यूस करने पर आपको लगा तो आप कहोगे यस द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बच्चे कई बार प्लॉट करते हैं, भूल जाते हैं क्वेश्चन तो पूछा गया था, क्वेश्चन तो इसी में करता है पर ओरिजिन से पास या नहीं। सो बी केयरफुल। हाँ, अगर नहीं करता तो आप कहोगे नो दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कई बार ऐसे भी पूछ सकती हूँ, मैंने कोई पॉइंट्स आपको प्लॉट करने के लिए कहा और पूछा वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए, अगर पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। बिकॉज यू नो द डेफिनेशन 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same straight
लाइन। अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स को लीनियर। आपने कई बार है, आपने 4 पॉइंट्स किए, 4 पॉइंट से आपने फिगर बनी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिगर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब ये देखो कैसे देखते हैं, ये 1 2 3 4, तो ये लेंथ कितनी होगी बेटे इसकी 4 यूनिट्स। नहीं करनी आती कई बार है ना बच्चों को। ये देखो ऐसे करना सबसे आसान तरीका, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, तो ब्रेड कितनी होगी बेटा इसकी 2 यूनिट्स। से ऐसे चलो, जहां से फिगर शुरू हो रही है, अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ से स्टेप लेने हैं, यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ से कितने स्टेप्स लिए मैंने 4, तो आई कैन से हियर, सो द गिवन डायग्राम इज ए रेक्टेंगल and its length is 4 units, breadth is 2 units, so I can say its area is length. What is the area of rectangle? Length into breadth, 4 into 2, it is how much? 8 square units. कुछ भी आए, अगर रेक्टेंगल बनता है तुम स्टेप्स काउंट करके उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को आइडेंटिफाई करके फिर उसका एरिया दे सकते हो। सपोज यहाँ फिगर है, ये देखा 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे चलो यहाँ से ये 2 से 4 तक खत्म हो रहा है। कितने स्टेप्स? इट इज हाउ मच 2 यूनिट्स। यहाँ 1 से 3 तक, ये भी देख सकते हैं 1 में से 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अगर ये स्टेप्स भी नहीं करने, और आसान तरीका, 4 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 2 में से 0 गया 2, ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। पहुंचे कहाँ 4 पे, शुरू कहाँ से हुए 2 से, 4 में से 2 गए 2, तो मैं बिना देखे बिना स्टेप्स काउंट किए कह सकते हो इट्स लेंथ इज 2 यूनिट्स। 3 minus 1 2, breadth is also 2 units, length breadth same, so this figure is a square. So क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ all its sides are equal, so it is a square. हम कहेंगे the figures obtained is a square and area of square is, so इसकी साइड कितनी है बेटे 2 units, लेंथ ब्रेड्थ नहीं कहना, and you all know that area of square is side square. जो भी आता है whatever you are getting square साथ में, what are the units of area, that is square units, ठीक है। और एक एक केस ये भी हो सकता है बेटे, you get a triangle, you get a right angle triangle, right angle triangle, और आपको right angle triangle का अगर एरिया कह दिया, ये है A suppose, ये है B, ये है C, ये परपेंडिकुलर है, तो आपने 8th में पढ़ा हुआ बच्चे, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड दिस इज नोन एज बेस, एंड एरिया होगा हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, या परपेंडिकुलर, या मैं परपेंडिकुलर कह दूं या ऑल्टीट्यूड। सपोज आपने डायग्राम बनाई और आपका डायग्राम क्या बन रहा है बेटा, ट्राइंगल बन रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ काउंट कर लेना है बेस को, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है, आपने ऑल्टीट्यूड को काउंट करके मल्टीप्लाई करके यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक चीज मैं और बस जस्ट वी आर लेफ्ट विद वन डाउट ओनली। सपोज मैंने बेटा आपने डायग्राम बनाई, आपको 3 वर्टिसेस बोल दिए हैं, ये आपके वर्टिसेस बन रहे हैं, और आपको बोला हुआ है कि इट इज ए स्क्वायर, जो भी बोला हुआ है, फाइंड द 4th वर्टेक्स। तो ये इसी के सामने इधर से जाओ, यहाँ से इसके सामने जाओ, ये जो है इट विल बी योर 4th वर्टेक्स। मतलब दिस इज द लास्ट केस कि अगर आपको 3 वर्टिसेस दिए हैं एंड यू आर सपोज टू फाइंड द 4th वर्टेक्स योरसेल्फ। आपकी डायग्राम बनी होगी, ऐसे बनी हुई है या ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, तो आपने इधर से गए इधर से गए, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये इट विल बी योर 4th। ये जरूरी नहीं है कि डी मिसिंग हो, A B C D यू आर हैविंग 4 पॉइंट्स, और इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट जो है वो मिसिंग हो सकता है। दैट्स इट, प्लीज डू, दिस इज द टोटल रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Points you can easily draw, you can now identify the figures and easily find their area also. If you guys this question, even if you are having any query, please send me in the